صبح اس کا الارم بجا تو وہ ایک ہاتھ الارم پر مارتا اسے بند کر گیا۔ فجر کی اذانیں چاروں طرف ہو رہی تھیں، جس کی آواز ایک خوبصورت ماحول بنا رہی تھی۔ اپنے سینے پر دھرا ہاتھ دیکھ کر وہ چونکا اور چہرہ موڑ کر دیکھا، جہاں عریشہ اس کے چہرے کے بے انتہا قریب اپنا چہرہ لیے سو رہی تھی کہ یارم کو اپنے ہونٹوں پر اس کی دھیمی سانسوں کی چھوئن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رات کو اس کے سونے کے بعد آہستہ سے قریب آ کر لیٹ چکی تھی کہ یارم کو پتہ بھی نہ چلا، اور اب اتنی گہری نیند میں تھی کہ نہ الارم کی آواز محسوس ہوئی اور نہ ہی اس کے اٹھنے کا احساس۔ یارم نے بے بس سی گہری سانس بھری۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، وہ اس سے ڈر کر مانتی۔ یارم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے تھاما اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی گھنی پلکیں سرخ گالوں پر بچھی بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ وہ گلابی ہونٹ اور سب سے دلکش وہ سراہی دار گردن لگی تھی اسے۔ یارم نے 2 انگلیوں کی پشت سے اس کی نازک سی گردن پر انگلیاں پھیری اور اس کے چہرے کو دیکھا جو بالکل بے سدھ پڑا تھا۔ تو کیا وہ اتنی گہری نیند میں سوتی تھی؟ یارم نے انگلیوں کو اوپر لے جاتے بے خودی میں اس کے ناک کی لو پر انگلی پھیری تو وہ پھر اس کی بند آنکھوں کو چھوا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی وہ ہوش میں آیا اور اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو اس کی گردن پر تھا۔ یارم نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ بیٹھا۔ اپنی بے وقوفی پر یارم نے ماتھا مسلا اور اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ایک حسین بلا اس کے گلے پڑ چکی ہے اور یہ سب روز ہوگا۔ وہ چینج کر کے وضو کر کے باہر آیا تو دیکھا وہ پورے بستر پر پھیل کر لیٹی تھی۔ یارم نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور ایک کشن اٹھاتے اس کے فیس پر پھینکا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا تھا کہ کیا ہوا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی پریشانی سے بولی جب آنکھیں نیند کی خماری لیے لال ہو رہی تھی۔ 2 لمحوں بعد اسے ہوش آیا تو یارم پر نظر گئی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عریشہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر بستر پر پڑے کشن کو میرا مطلب ہے آپ نے مجھ پر کشن کیوں پھینکا؟ وہ بولتے ہوئے آپ کہتی حیرت سے اس سے پوچھنے لگی تو یارم نے سر اس بات میں ہلایا۔ اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ یارم نے ایک آئی براؤ اٹھاتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ حیرت سے پردوں کے پیچھے سے نظر آتے منظر کو دیکھتی، پھر یارم کو دیکھنے لگی اور پھر گھڑی میں وقت دیکھنے لگی جہاں صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ صبح کے 4:30 بج رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں صبح ہو گئی ہے؟ عریشہ نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر یارم کا گلا دبا دے جو اسے اتنی میٹھی نیند سے اٹھا گیا تھا۔ فجر کا وقت ہو رہا ہے، اٹھ کر نماز پڑھو، اور یہ جو تم صوفے سے اٹھ کر میرے بیڈ تک آئی ہو نا، اس چیز کی خبر بھی میں ذرا آ کر لیتا ہوں۔ دوبارہ سونے کی غلطی مت کرنا کہ یہ یارم سلطان کا روم ہے۔ مجھے یہاں کی ہر خبر پتہ ہوتی ہے۔ اگر مجھے پتہ چلا بنا نماز پڑھے تم سوئی ہو تو پھر تم سے ساری زندگی کی قضائیں پڑھواؤں گا۔ یارم اس کو تنبیہ کرتا روم سے نکلتا مسجد کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عریشہ تو حیرت سے بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے غصے سے کشن کو اٹھا کر سامنے دیوار پر مارا۔ نماز کے لیے اس کی نیند کو خراب کیا تھا اس نے۔ عریشہ نے غصے سے سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور نیند میں ہی پورے کمرے کو چاروں طرف دیکھ کم گھورنے زیادہ لگی۔ یہ کہیں اس وائلڈ مین نے کیمرے تو نہیں چھپائے ہوئے یہاں؟ وہ بڑبڑاتی برے برے منہ بناتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہاتھ منہ دھوتی وضو کرتی وہ نیند میں ہی واش روم سے باہر نکلی۔ دوپٹہ تو تھا نہیں، اس لیے کل رات پہنے سون کا دوپٹہ اٹھاتے نماز پڑھنے لگی۔ جلدی جلدی 2 رکعت نیند میں ادا کی کہ نیند تو ہر چیز پر حاوی تھی۔ سلام پھرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، اس انسان کے دل میں میری اتنی محبت بھر دیں کہ انہیں آکسیجن بھی نہ ملے میرے بغیر، آمین۔ وہ جلدی جلدی دعا مانگتی بستر کی طرف بڑھ گئی اور وہیں لیٹتی آنکھیں بند کرتی نیند کی وادیوں میں گم ہوئی۔ زاویار اور ہنم، کیسی باتیں کر رہی ہیں آنی آپ؟ یارم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ آنی کے کہنے پر ان کے کمرے میں آیا اور جو بات انہوں نے انہیں بتائی اس کا ری ایکشن ایسا ہی ہونا تھا سن کر۔ ہاں بیٹا، زاویار کی آنکھوں میں ہنم کے لیے محبت دیکھی ہے میں نے، اور شاید وہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، ثنا بیگم نے مسکرا کر بتایا تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا، جبکہ زاویار کا انداز اس کی آنکھوں سے بھی مخفی نہ رہا تھا۔ زاویار کو مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو بیٹا، بہت اچھا بچہ ہے، ہماری آنکھوں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے ہنم کے لیے بہترین شخص ہے وہ۔ ثنا بیگم مسکرائی تھی۔ آنی، میں خود ہینڈل کر لوں گا آگے سب کچھ، آپ پریشان نہ ہو۔ یارم فی الحال خاموشی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آفس پہنچتا وہ سیدھا زاویار کے کیبن میں گیا جہاں وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ یارم کو دیکھ اس نے 2 انگلیوں سے رکنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کی کال ختم ہونے کا ویٹ کرنے لگا، اور پھر زاویار جیسے ہی بات ختم کر کے پلٹا تو یارم نے اس کے منہ پر ایک مکہ مارا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا کر
उसे सदमे की कैफियत में देखने लगा। ये क्यों मारा? ज़ावियार ने हैरत से पूछा तो यारम ने खूंखार नज़रों से उसे देखा। क्या बात करी तूने आंटी से, अपने और हानम के बारे में? हाँ, यारम ने मजीद उसकी तरफ बढ़ते आंखें छोटी किए उससे पूछा, जबकि ज़ावियार की तो सिट्टी पिटी गुम हुई। वो खामोशी से हड़बड़ाहट के संग उसे देखने लगा। जुबान पर लफ्ज़ों ने आने से इनकार कर दिया था। तू हानम से मोहब्बत करता है? मेरी बहन से, यही कहा है ना तूने? यारम ने आगे बढ़ते फिर उसे मारना चाहा कि ज़ावियार ने उसके हाथ को थामा। हाँ तो ये जुर्म है क्या? कहाँ लिखा है कि यारम की बहन से कोई प्यार या शादी नहीं कर सकता? इज्जत से हाथ मांग रहा हूँ यार, ज़ावियार ने ज़रा नरमी और मिन्नत भरे लहजे में कहा, जबकि यारम के तासुरात में कोई फ़र्क ना आया। मैंने पहले ही तेरी हरकतों से समझ लिया था कि दाल में कुछ काला है। तुझे अपनी बहन दूँ जो उसे वहाँ अकेले छोड़कर आया था तू? यारम ने याद आने पर ज़रा सख्त लहजे में कहा तो ज़ावियार के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात छाए। ऐसी बात नहीं है यार, तुम जानते हो मैं ऐसा किसी गैर लड़की के साथ भी नहीं कर सकता। वो तो फिर तुम्हारी बहन थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मलीशा इस तरह की भी कोई हरकत कर सकती है। ज़ावियार ने नरमी से उसे समझाया तो यारम थोड़ा नर्म पड़ा। लेकिन फिर भी तुमने गलती की थी और इसलिए मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि तुम्हें अपनी बहन देनी चाहिए या नहीं। यारम ने चेहरा मोड़ते मुस्कुराहट दबाते कहा तो ज़ावियार फिक्रमंद हुआ। यकीनन वही हो रहा था जिसका उसे डर था। उसे पता था कि यारम ये बात ज़रूर उठाएगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, यकीनन तुम सही फैसला करोगे, ज़ावियार ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा तो यारम ने पलट कर उसे देखा, जिसके चेहरे की चमक बिल्कुल गायब थी। अगले ही लम्हे यारम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट छाई और वो उसकी तरफ बढ़ते उसे गले से लगा गया कि अचानक हुई उस हरकत पर ज़ावियार भी हैरत से उसकी कमर पर हाथ रख गया तो यारम ने उसकी कमर पर जोरदार मुक्का जड़ा था। अगर मेरी बहन को खरोच भी आई ना तो तुझे भी नोच डालूंगा, याद रखना, यारम ने उसे वार्न करते कहा तो ज़ावियार दर्द बर्दाश्त करता खुले दिल से मुस्कुराया और दोबारा उसके गले लगा। अरीशा भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं, वाइल्ड मैन है तू, ज़ावियार ने हंसते हुए कहा तो यारम ने उसे घूरा। फिक्र मत कर, मैं वाकई उससे मोहब्बत करता हूँ और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी मेरे लिए यही जज्बात हैं। मैं हमेशा उसे खुश रखूँगा। ज़ावियार ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे यकीन दिलाते लहजे में कहा कि यारम मुस्कुराते सर इस बात में हिला गया। फिर कल ही आ जा ताकि मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए। मुझे लगता है अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यारम ने मुस्कुराते ज़ावियार के दिल की बात की तो वो तो खुद यही चाहता था कि जल्द से जल्द वो हानम आफंदी को अपनी मिल्कियत में लेकर उस पर अपने जज्बात का खुलकर इजहार कर सके और फिर आगे मज़ीद बातें डिस्कस करते वो फैसले का इख्तिताम कर गए, जबकि ज़ावियार की आंखों में सिर्फ हानम का वही मुस्कुराता चेहरा था जिस पर एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती और वो काला स्याह तिल जो शान से वहीं विराजमान रहता। उसे याद करते ज़ावियार के होंठ भी दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराए। सयाम को सोए कुछ ही घंटे गुजरे थे कि उसे किसी की चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। वो फौरन उठा और कमरे से बाहर निकला। जब उसी लम्हे उसकी मोम और डैड भी उसके कमरे में आए। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं सयाम? लिसा बेगम ने हैरानी से पूछा कि सयाम भागता हुआ रोहा के कमरे की तरफ भागा। दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही अंदर बढ़ा तो रोहा बिस्तर पर लेटी नींद में बुरी तरह चीख रही थी, अपने जिस्म को नोच रही थी। सयाम हड़बड़ाता उसके करीब पहुंचा जो बुरी तरह से चीख रही थी। बंद आंखों से आंसू गिर रहे थे, जबकि लिसा बेगम और असफन साहब दरवाजे पर खड़े हैरत और वहशत से उसकी तरफ देख रहे थे। सयाम ने उस नाजुक सी लड़की को देखा जो न जाने किन अजियतों से गुजर कर उसे मिली थी। वो उसके करीब बैठा और फिर सबसे पहले उसके दोनों हाथों को काबू किया जिनसे वो खुद को नोच रही थी। वो अपना सर दाएं बाएं मारती चीख रही थी कि सयाम ने एक ही झटके में उसे बुरी तरह झंझोड़ा कि वो आंखें खोल गई। रिलैक्स रोहा, रिलैक्स, मैं यहीं हूँ आपके पास, देखें आप सेफ हैं। सयाम ने उसके गालों से आंसू साफ करते उसे यकीन दिलाना चाहा। जब वो सयाम को देखती लम्हे में उसके सीने का हिस्सा बनी। नहीं, वो आ गया, वो एंजल, वो आ गया, उसने मुझे ढूंढ लिया, वो पकड़ लेगा मुझे, वो जला देगा मुझे, मार देगा। एंजल मुझे बचा लो। वो डरी हुई रोती, खौफजदा होती, हड़बड़ाती उसके सीने का हिस्सा बनी उसे बता रही थी, जबकि वो साकित सा बैठा उसके गिर्द हिसार बना गया था। ना उसने उसके आंसू पोंछे। बाहर ममालिक में तो ये सब आम था और ऐसा हरगिज़ भी नहीं था कि उसने किसी लड़की को पहले हक ना किया, लेकिन आज जो लड़की उसके साथ लगी हुई थी उसके लिए सयाम के ऐसा साथ इस कदर मुख्तलिफ क्यों महसूस हो रहे थे। उसकी धड़कनें सुस्त हो गई थीं, जबकि दूर खड़ी लिजा बेगम और असफन साहब ने नफरत से यह मंजर देखा और फिर वो दोनों सब्र का घूंट भरते वहाँ से चले गए। रोहा, देखे मैं यहीं हूँ, कोई भी नहीं आया यहाँ,
आप बिल्कुल सेफ़ हैं यहाँ। मैं किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे होते हुए आप तक पहुँचे। आप सुन रही हैं ना? सयाम ने उसके सर के बाल सहलाते उससे कहा तो वो नज़रें यहाँ वहाँ घुमाती चारों तरफ देखने लगी जहाँ कोई भी ना था। कोई नहीं है? वो मासूमियत से भीगे चेहरे के संग पूछने लगी, जबकि उसकी शर्ट का कॉलर अभी भी दोनों हाथों से दबोचा हुआ था। उसने दबोचा हुआ था। नहीं, कोई नहीं है। सयाम ने नरमी से उससे अपना कॉलर छुड़वाया और मुस्कुराकर उसे देखा तो वो भीगी आंखें लिए उसे देखने लगी। वो आ जाएगा, मुझे पता है वो आ जाएगा, वो ढूंढ लेगा मुझे, वो रोती हुई मिनमिनाते उसे बताने लगी। तो सयाम को तरस आया उस पर। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? कौन था वो जिसने उस मासूम के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया था? सयाम के माथे की रगें उभरने लगी थी गुस्से से, लेकिन वो उसके सामने नर्म मिजाजी से ही काम लेना चाहता था, वरना वो लड़की उससे भी डर जाएगी। मैंने कहा ना, आप जब तक मैं हूँ कोई आपके करीब नहीं आएगा। अब आप सयाम राना की हिफाजत में। अब वो शख्स तो क्या, कोई बुरी शय भी आपके करीब नहीं फटकेगी। मेरा वादा है आपसे। वो जाने अनजाने में एक अनजान लड़की से एक वादा बांध गया, उसकी हिफाजत खुद पर फर्ज कर गया, उसे अपने होने का मान दे गया, जिसे महसूस करके जाने अनजाने में ही सही, लेकिन रोहा के दिल में सुकून उतरा कि शायद अब वो वाकई महफूज हाथों में थी, हिफाजत से थी। वो सुकून से लेटने लगी, जबकि भीगी आंखें सयाम पर ही टिकी थीं कि वो वहीं रहे उसके पास। सयाम भी नर्मता सुराग चेहरे पर सजाए उसके पास बैठा था तो वो सुकून से आंखें मूंद गई। सयाम खामोशी से वहीं बैठा उसके चेहरे को गौर से देखने लगा, जबकि उस शख्स से शदीद नफरत सी महसूस हुई थी उसे, जिसने उस लड़की की इज्जत को नोचा था। और न जाने ऐसे कितने ही मर्द थे जो औरत की निस्वानियत को उजाड़ते थे। सयाम खामोशी से बैठा आगे आने वाले हालात के बारे में सोचने लगा। पहले उसने सोचा था कि यहाँ किसी बेस्ट डॉक्टर के हवाले रोहा को कर देगा, लेकिन अब उसने फैसला किया कि ये काम उसी को करना था। और फिर सयाम राना से बेहतर इंसान की साइकी पढ़ने का हुनर किसी को हासिल ना था। अरीशा को गुस्सा आ रहा था। एक तो यारम ने उसे घर से निकलने को मना किया, दूसरा वो खुद सुबह से गायब था। वो हरगिज़ भी उसकी सुनकर कैद घर में नहीं रहने वाली थी, लेकिन मसला ये था कि उसके कपड़े नहीं थे, वो क्या पहनती? अब तक तो यारम की शर्ट और ट्राउज़र में घूम रही थी। नाश्ता भी करना था उसे। बेइंतहा भूख लग रही थी उसे। जब उसी लम्हे हानम ने दरवाज़ा खटखटाया तो अरीशा ने फ़ौरन खोला। थैंक टू अल्लाह कि तुम यहाँ आ गई, मुझे भूख लग रही है, और देखो मेरे पास कपड़े नहीं, और वो तुम्हारा अकड़ू भाई मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया। अरीशा ने आते साथ ही पूरी कहानी हानम को सुनाई तो वो हंसती हुई उसे देखने लगी। अरे तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? आप मेरा ड्रेस पहन ले, फिर भाई के साथ जाके शॉपिंग कर लीजिएगा। हानम ने उसे एक अच्छा आइडिया फराहम किया, जिस पर ना चाहते हुए भी उसने हामी भरी। चलो ठीक है, तो मुझे एक ड्रेस ला दो, लेकिन देखो प्लीज़ कोई ऐसा जोड़ा मत लाना जिसे मैं संभाल ना सकूं, कुछ कंफर्टेबल लाना। अरीशा ने उसे समझाया तो वो फ़ौरन इस बात में सर हिलाती मुड़ी। तो अरीशा ने फिर उसे रोका। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? अरीशा के पूछने पर हानम ने मुस्कुराते अपना फ़ोन उसे थमाया और चली गई, जबकि अरीशा ने सबसे पहले उस अकड़ू इंसान को फ़ोन मिलाया, जिसने पहली बेल पर ही उठा लिया कि अरीशा का हैरत से मुंह खुला। उसका फ़ोन तो 2-3 बार करने पर उठाता था वो, हानम का फ़ोन पहली बार उठा लिया। इतनी नाइंसाफ़ी, वो भी बीवी के साथ। अरीशा के अंदर बीवी की रूह जागी थी अब। हेलो हनी, खैरियत? यारम की नर्म लहजे में आवाज़ उभरी तो अरीशा ने गुस्से से आंखें बंद करके खोली। मिस्टर यारम सुल्तान, अगर आपको होश हो तो मैं आपको बताती चलूं कि अब आपकी एक अदद बीवी भी है, जो घर में अभी तक आपकी शर्ट पहने घूम रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो इसी शर्ट में नाश्ता करने चली जाऊं? अरीशा ने दांत पीसते ब मुश्किल नर्म लहजे में कहा तो यारम के माथे पर बलों का जाल बिछा। खबरदार, घर में मुलाजिम भी है, अगर तुम इस हालत में नीचे गई ना तो। अभी यारम बोल ही रहा था कि अरीशा ने उसकी बात काटी। हाँ हाँ, आप मेरी टांगों को तोड़कर इसी कमरे में डाल देंगे, मुझे पता है मेरे प्यारे शोर। अरीशा ने मजीद दांत पीसते कहा तो यारम ने ऐसे सरस बात में हिलाया जैसे अरीशा उसके सामने बैठी हो। गुड, पहचानने लगी हो अब तुम मुझे? यारम ने कदरे नर्म लहजे में कहा तो अरीशा का पारा हाई हुआ। मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आप जानते नहीं हैं मुझे। सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन मेरे पास पहुंचाएं और उसके बाद मेरे कपड़े, वरना मैं इसी हालत में घर से बाहर निकल जाऊंगी शॉपिंग के लिए। और अरीशा यारम सुल्तान को यारम सुल्तान भी नहीं रोक सकेगा, समझे आप? अरीशा दबी दबी आवाज़ में गुर्राई कि यारम के गुस्से को भी हवा दे गई। उसका तो दिमाग ही घुमा गई थी। वो इस हालत में घर से बाहर निकलने का कह रही थी। तुम सिर्फ इस कमरे से कदम बाहर रख के दिखाओ मुझे, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यारम सुल्तान है कौन। यारम ने साफ लफ्ज़ों में उसे धमकी दी, जिसका उस शेरनी पर कोई असर नहीं हुआ।
आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, मुझे मोबाइल भिजवाएं और कपड़े भी, वरना मैंने भी साबित कर देना है मैं किसकी बीवी हूँ। अरीशा ने गुस्से से कहते खटाक से फ़ोन बंद किया कि यारम ने आंखें फाड़े फ़ोन को देखा कि वो लड़की उसके मुंह पे फ़ोन बंद कर गई थी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो यारम सुल्तान के हुक्म को टालेगी और उसके खिलाफ जाएगी। यारम ने गुस्से से फ़ोन को घूरा और इंटरकॉम उठाते आयशा को बुलाया। मिस आयशा, आप सारे काम फ़िलहाल छोड़ें, ड्राइवर के साथ जाकर कुछ शॉपिंग करके लाएं, चंद ड्रेसेस जो बिल्कुल भी वेस्टर्न ना हो, मुझे दुपट्टे वाली ड्रेसेस चाहिए। मैं आपको कुछ पिक्चर सेंड कर रहा हूँ और बाकी सब डिटेल्स भी। और हाँ, याद रहे आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, जितनी कर सकती हैं शॉपिंग उतनी करके सारा सामान ड्राइवर के साथ मेरे घर पर पहुँचाएँ। ओके। यारम ने आयशा के अंदर आते उसे सारी बात समझाई तो वो हैरानी से बस सर इस बात में हिला गई, जबकि डर के मारे वो दूसरा सवाल ना कर सकी और फ़ौरन वहाँ से निकलती चली गई। जबकि यारम ने ऑनलाइन एक बेहतरीन मोबाइल ऑर्डर किया। उसे यकीन था अगर वो कह रही है तो वो घर से निकल भी जाएगी, और वो अपनी बीवी को ऐसे कमरे से बाहर ना निकलने दे। घर से बाहर निकलने देना तो दूर की बात थी, फ़िलहाल तो वो उसकी बात मान गया था कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन घर पहुंचकर अरीशा राना को वो बताएगा कि उसने किसको धमकी देने की हिम्मत की। हेलो, यस सर, उसने भारी आवाज़ में फ़ोन उठाते जवाब दिया जब सामने से सख्त आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मेजर अलमीर सिकंदर, शायद आप भूल रहे हैं कि आपको आपके शहर छुट्टियां मनाने नहीं भेजा गया, बल्कि एक अहम केस आपके हाथों में दिया गया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया। सामने से कर्नल उस्मान की आवाज़ गूंजी तो अलमीर ने शर्मिंदगी से माथा मसला। नो सर, आपको अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होगा। मेरा काम जारी है और बहुत जल्द मैं आपको एक अहम खुशखबरी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह। अलमीर ने मुअद्दब लहजे में कहा, वहाँ की पुलिस टीम आपके साथ है, डीएसपी ज़रमान खान भी आपकी मदद के लिए हाजिर है। वहाँ हर लम्हे की खबर मुझे हो रही है, इसलिए ज़रा संजीदा हो जाएं। अब मैंने आपको चुना है क्योंकि आप इस लायक लगे मुझे, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ये मकाम बरकरार रखेंगे। उन्होंने उसे खबरदार किया था तो वो यस सर कहते उनसे बात करता फ़ोन रख गया। उसका जो असल मकसद था वो उसे हट नहीं सकता था, और वो था उन लोगों को हिरासत में लेना जो ड्रग्स और लड़कियों को मुल्क से बाहर सेल कर रहे थे। और ये काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, जिसके लिए मेजर अलमीर सिकंदर को चुना गया था। और मोहब्बत और गम के अंदर महव होते वो अपने असल मकसद से हट रहा था, जो वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब वक्त आ गया था कि वो अपने असल रूप में सामने आए।